All right. Okay. ठीक है. Let's start. So the thing is, I've not prepared the lecture, so we'll have to go a little slow because I'll also be seeing what all is there in the syllabus. Yeah. Who wants to come on the video? Raise hand. Anybody who wants to come on the video on panel with me, then they can help me out. No. Okay, Aryan. Aryan is the first one. Make Hello, panelist. sir. ठीक है Aryan, come. Hi. ठीक है. तो तुमने स्कूल में अटेंड किया? हाय आर्यन. तो स्कूल में सब कुछ समझ में आ गया? तो ये एटॉमिक मॉडल में क्या क्या पढ़ा है? कुछ नहीं सर, थियोरेटिकल चैप्टर है ज़्यादातर. बेसिकली बोर्स एटॉमिक मॉडल और वो सभी पढ़ा है. फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना एनर्जी से बाउंड है वो सभी पढ़ा है. ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. ओके. तुम भी काफी डेड लग रहे हो यार. तो नहीं सर, मैं तो नहीं? ऐसे ओके. रहता हूँ. चलो ठीक है. फाइन, लेट्स स्टार्ट. I'll read it from here. As you said, it's a theoretical chapter, but there's a bit of physics. It's just about the formula, no application as such. Okay. Sure. Atomic model. Okay. Model is simply a set of hypotheses. ठीक है. Okay. So कौन कौन लोगों ने दिया एटॉमिक मॉडल? किस किस का एटॉमिक मॉडल तुम पढ़ रहे हो स्कूल में? लिख दो वहां पे अपने क्वेश्चन वाले सेगमेंट में. थोड़ा इंटरैक्टिविटी बनेगी. लेट्स वार्म अप अ लिटिल बिट, देन विल मूव अहेड. बताओ किस किसने दिया एटॉमिक मॉडल? किस किस को लगा कि भाई इस तरह से हो सकता है मॉडल? मॉडल इज बेसिकली हाइपोथेसिस, राइट? आई मीन सम पीपल थॉट ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. कुछ जगह पे वो हाइपोथेसिस फिट हो गई, कुछ जगह पे नहीं हुई. किस किसने दिया? तुम किस किस के बारे में पढ़ रहे हो? Okay. Priya Sharma says Bohr, Rutherford, Bohr, Thomson, Rutherford, Bohr, Thomson. डाल्टन का भी होता है एक, है ना? एक डाल्टन का भी होता है, एक थॉमसन का है, एक रदरफोर्ड का, एक बोर का है. ठीक है. So these are the people. Okay. Let's go ahead. No. So yeah, basically the hypothesis has to satisfy everything that's happening around. So कुछ लोगों की कुछ जगह satisfy होती है, कुछ लोगों की कुछ जगह satisfy होती है. तो हम इसलिए सारे मॉडल्स पढ़ते हैं. More clarity, various new models like Dalton, Thomson, Rutherford and Bohr came into picture. Dalton's model, every element is made up of tiny indivisible particles called atoms. Okay. Atoms of same element are identical both in physical and chemical properties. While atoms of different elements are different in their properties. Okay. All elements are made up of hydrogen atom. The mass of heaviest atom is about 250 times the mass of hydrogen atom, while radius is heaviest. Okay. Atom is stable and electrically neutral. ठीक है. तो अब ये डाल्टन का था. इसमें यू कैन सी कि बहुत सारी चीजें गलत है ना? तो उसने बोला था एवरी एलिमेंट इज मेड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, बट एटम्स आर फर्दर डिवाइडेड लेटर. तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे वो फेल हो गया. ये मॉडल कहाँ कहाँ पे फेल हुआ? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट एटम कैन आल्सो बी डिवाइडेड फर्दर. ठीक है. तो हो गया फेल. ओके. अभी थॉमसन मॉडल. थॉमसन ने क्या किया? उसने इलेक्ट्रॉन पकड़ा. एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसने बोला प्लम पडिंग मॉडल. तो वो इट लुक्स लाइक अ प्लम पडिंग, राइट? कि whole electron is surrounded like this. So cloud, he called it a cloud. अब ये मैंने चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया, तो जो जो मेरे को पता है मैं उसके हिसाब से, जो जो मुझे याद है उसके हिसाब से बता रहा हूँ. वैसे भी ऐसे चैप्टर्स बहुत ही रिपेल करते हैं मेरे को. So Thomson's atomic model or plum pudding model. Okay. Atom is a positively charged solid sphere of radius of the order of 10 to the power minus 10 meter, in which electrons are embedded as seeds in a watermelon. Okay. Total charge in an atom is 0, and so the atom is electrically neutral. Okay, so like this. Uniformly distributed. Achievement of model explains successfully the phenomena of thermoionic emission, photoelectric emission and ionization. Right. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब
वहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सो इट वाज एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस. ओके. Type of line spectrum, emission line spectrum, when an atomic gas or vapor at a pressure less than atomic pressure is excited by passing electric discharge, the emitted radiation as spectrum which contains certain specific bright lines only. These emission lines constitute emission spectrum. These are obtained when electron jumps from excited states to lower states. The wavelength of emission lines on different elements are different. For one element, the emission spectrum is unique. It is used for the determination of composition of an unknown substance. ठीक है. तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में आता है, तो उतनी एनर्जी वो या तो रिलीज करता है या तो गेन करता है. जब रिलीज करता है ऑब्वियसली तब उसका स्पेक्ट्रम बनता है. ओके. Absorption line spectrum. When white light is passed through a gas, the gas is found to absorb light of certain wavelength. इससे क्या होगा? Absorb करेगा तो अब now it's going to go to a higher state. Absorb light of certain wavelength. The bright background on the photographic plate is then crossed by dark lines that correspond to those wavelengths which were absorbed by the gas atoms. Okay. The absorption spectrum consists of dark lines on bright background. These are obtained due to absorption of certain wavelengths, resulting into transition of atom from lower energy to a higher energy state, क्योंकि absorb कर लिया उसने. The emission spectrum consists of bright lines on dark background. और इसमें क्या था? बताओ इसमें क्या था? Emission line dark spectrum में lines on bright background. In emission it was bright lines on dark, and in absorption it was dark lines on bright. Exactly. क्योंकि जब emit हो रहा है तो obviously light निकल रही है ना, तो उसको तुम dark में देखोगे, और जब absorb कर रहा है तो उसको white में देखोगे, और जहां जहां पे absorb हो गया वहां पे light नहीं आएगी, है ना? Okay. So emission spectrum में था white lines on dark background, और इसमें absorption spectrum में है dark lines on white background. Okay. ठीक है. All right. अच्छा, Aryan Gotwal is able to write it. Okay. Jasmine Kaur correct, Jasleen Kaur correct. Okay. Riya Sharma correct. बहुत बहुत chapter है यार. Failure of the model. It could not explain the line spectrum of hydrogen atom. Okay. Why? Why could it not explain the line spectrum of hydrogen atom? Basic logic है सारे. क्यों नहीं कर पाया बताओ? So cause like जब एटम एक शेल से दूसरे शेल पे एक्साइट होता है तब, और फिर डी एक्साइट होता है तब एमिशन होता है ना, एंड तभी अपने को मतलब ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है. इसमें शेल ही नहीं है. तो वो शेल एक शेल से दूसरे शेल पे एक्साइट डी एक्साइट कैसे होएगा? Correct. And it could not explain the Rutherford's alpha particle scattering experiment. चलो अब Rutherford का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं. तो यार एक कहानी है. जब ये मेरी टीचर पढ़ा रही थी ना, मुझे याद है 11 में सबसे पहली क्लास थी हमारी, केमिस्ट्री की थी आई थिंक. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही था. तो मैं पढ़ रहा था, बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था कि अरे तब तक एक्चुअल फिजिक्स आई नहीं थी ना. 11th की क्लास में था ये, केमिस्ट्री में 11th. हाँ, तभी एक्चुअल फिजिक्स एक्चुअल केमिस्ट्री चालू नहीं हुई. एनीवे द टीचर वाज टीचिंग एंड शी सेड कि यार वो यही एक्सपेरिमेंट है ना कि हाँ वो अल्फा और बीटा और गामा रेस छोड़ते हैं. अल्फा को कुछ होता है, बीटा को कुछ होता है, गामा बाउंस बैक हो जाता है तो सीधा निकल जाता है ना. तो और जहां जहां पे वो डिफ्लेक्ट होते हैं उससे पता चलता है कि कौन सी चीज वहां पे रखी हुई है, राइट. तो बेसिकली एट द एंड दे डिसाइडेड कि 99.99% स्पेस अंदर क्या है? एम्प्टी होता है. हाँ, सिद्धार्थ पंडित गॉट इट. यस, सिद्धार्थ पंडित, सेम स्टोरी, राइट. सो नाउ द थिंग इज, वो एक न्यूक्लियस है, राइट. यहाँ पे न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है. ओके. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, राइट. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जगह में क्या है बताओ? कुछ नहीं. ऑप्शंस: एयर, वैक्यूम, क्या? सर एयर, वैक्यूम, एंड दोनों, दो ही ऑप्शन है, या तीसरा तुम्हारे मर्जी से कुछ. जिन्हें ने जाके हाउ टू गामा एंड बीटा डिफ्लेक्ट, वही अभी ये पढ़ाएंगे ना. रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है. बट उससे पहले मैं एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ा रहा हूँ इधर, ठीक है. थोड़ा सा प्रीफेस दे रहा हूँ मैं कि मेरे साथ क्या हुआ था.
तो माय क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैंने टीचर से पूछा था कि न्यूक्लियस यहाँ पे और यहाँ पे ये है, तो बीच में क्या है, तो बताओ क्या होगा। बिकॉज अगर वैक्यूम है, ठीक है, तो इसका मतलब तुम अग्री कर रहे हो कि 99.99% जगह वैक्यूम है एक एटम में, तो सारे एटम्स में 99.99% जगह वैक्यूम है, इसका मतलब इस पूरे रूम में 99.99% जगह वैक्यूम है, राइट। तो इतना सारा वैक्यूम है इधर, तो प्रेशर कितना बिल्डअप होगा। माय टीचर एंडेड अप सेइंग एयर, तो शी सेड एयर है उन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। पॉसिबल है क्या? तो टेक्निकली अगर करेक्ट। एयर रहेगा तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। एयर हो नहीं सकता ना, बिकॉज एयर इज मेड अप ऑफ हाँ स्मॉल पार्टिकल विद एग्जैक्टली। मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल के हाँ अंदर एटम है, तो एटम के अंदर एयर नहीं हो सकता, राइट। Yeah, so that's why these guys everywhere you'll see it being called as empty space, not vacuum, nothing. They just call it empty space. So ये question हम answer करने की कोशिश करेंगे throughout this particular chapter. But now I've given you a reason to find an answer throughout the chapter. ठीक है, अब हम थोड़ा सा heavy कर रहे हैं, Rutherford atomic model पे जा रहे हैं. In 1911, Rutherford performed a critical experiment that showed that Thomson's model could not be correct. In this experiment, a beam of positively charged alpha particles, helium nuclei. Yeah, so what is alpha particle? Jaivir, you're saying it's vacuum. So vacuum nahi hai, technically it's not vacuum. क्योंकि vacuum होगा तो फिर then there'll be a lot of pressure na from around. It's not technically vacuum. That's why you call it empty space only. It's another thing altogether which we'll talk about in some time. Okay. Alpha particle क्या होता है? बताओ भाई. Chemically alpha particle क्या होता है? Electrically alpha particle क्या होता है? बताओ आर्यन गोथवाल. सर इलेक्ट्रिकली तो बेसिकली इट्स जस्ट न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रिकली कितना चार्ज है उसके ऊपर? प्रोटॉन के चार्ज जितना ही होगा ना सर। नहीं, कितना चार्ज है? +1 +2 कितना चार्ज है? इतना नहीं पता सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो अभी इसमें देखो ना क्या लिखा है, इट्स इन दिस एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल व्हिच इज अ हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम न्यूक्लियाई में कितना चार्ज होगा? हीलियम में कितने प्रोटॉन है? तो 2 प्रोटॉन है उसमें। तो बस 2 चार्ज हो गया ना फिर। टेंशन मत लो यार, ओके बिंदास वैसे। बोलो तुम आंसर, गलत हो या कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। चलो, Jinan is asking how can it not be vacuum between the two? We'll talk about it because the definition of vacuum is something else. Okay. The definition of vacuum is where there is no air, but now we're talking about a distance which is lesser than the composition of air. Okay, that's why. All right. किंगशुक बस में 4 मास, हाँ मास 4 है, ठीक है। ओके चलो, so basically okay, so alpha particle which is helium nuclei was projected into a thin gold foil. It is observed that the most of the alpha particles pass through the foil as if it were empty space. Alpha particle क्यों लिया उसने? छोटे particles होते हैं वो, they can go through it, that's why. ठीक है, okay. मैंने सिमुलेशन भी निकालने की कोशिश की, but as I said I could not prepare the chapter properly. अगली क्लास में अच्छे से लेंगे इसको, I'll show you the simulations. But some surprising results are also seen. Several alpha particles are deflected from their original direction by large angles. Few alpha particles are observed to be reflected back, reversing their direction of travel, as shown in the figure. तो ये देखो, ठीक है, यहाँ से alpha particle गया, यहाँ पे छोटे से होल में हमने इसलिए डाला so that इसको एक लीनियर बना सके, ताकि हमको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बाउंस बैक हो गया, बहुत सारी जगह पे डिफ्लेक्ट होके आगे चला गया। If Thomson model is assumed true, then the positive charge is spread uniformly in the volume of an atom, and the alpha particle can never experience such a large repulsion, due to which it will be deflected by large angles. Such large angles in the experiment. On the basis of this experiment, Rutherford presented a new atomic model. In this new atomic model, it was assumed that the positive charge
in the atom was concentrated in the region that was small related to the size of the atom. Any idea कितना small होगा? न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा? कोई सेंस दो. Sir, I think it's something like the radius from the sun to the orbit of Neptune is to the radius of the outermost orbit of an atom, hydrogen atom, to the size of the nucleus. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर एक तुमने पूरी फुटबॉल फील्ड ली है, फुटबॉल ग्राउंड लिया है, ठीक है, उतना बड़ा एटम है, तो जो फुटबॉल होगा उतना बड़ा न्यूक्लियस होगा. दैट्स द डिफरेंस. सो इतना सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है उतने न्यूक्लियस में, तो उसकी डेंसिटी, मास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, दैट्स हाउ स्मॉल, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज सच स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, बिकॉज एंड इन सच अ स्मॉल एरिया देयर वाज सच स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा डेंसिटी था. ओके ओके. He called this concentration of positive charge the nucleus of the atom. Electrons belonging to the atom were assumed to be moving in large volume of atom outside the nucleus. To explain why these electrons were not pulled into the nucleus, Rutherford said that electrons revolve around the nucleus in orbits around the positively charged nucleus in the same manner as the planets orbit the Earth, the Sun. Corresponding atomic models can be approximated as shown. तो बेसिकली उसने सवाल पूछा कि भाई अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव तो कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते, तो उसने बोला कि मे बी ये घूम रहे होंगे, तो उनकी वेलोसिटी के कारण दे विल गेट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दैट कैन काउंटर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फोर्स व्हिच इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर नाउ, दिस होल कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो. रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द मॉडल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम. Justification. According to Maxwell's electromagnetic theory, every accelerated moving charge particle radiates energy in the form of electromagnetic waves, and therefore during revolution of electron in circular orbit, its frequency will continuously vary, that is decrease, which will result in the continuous emission of lines, and therefore spectrum of atom must be continuous, but in reality one obtains line spectrum for atoms. वो मैक्सवेल ने बाद में समझाया. It could not explain the stability of atoms. Correct. अभी stability कैसे बताएगा? Because अगर वो radiate ही कर रहा है तो फिर मर जाना चाहिए atom को बीच में. Justification. Since revolving electron will continuously radiate energy, and therefore radii of the circular path will continuously decrease, and in time of about 10 to the power minus 8 second, revolving electron must fall down in a nucleus by adopting a spiral path. Right? That's what we just talked about. वो radiate कर रहा तो मर जाना चाहिए. The justification तो दिया नहीं. This is the problem that it did not explain. Determination of distance of closest approach. I think ये तुम्हारे स्कूल ने पढ़ाया, मैंने जब नोट्स मंगाए थे जसमीन से, I saw something like this was there. When a positively charged particle approaches towards stationary nucleus, then due to repulsion between the two, the kinetic energy of positively charged particle gradually decreases, and a stage comes when its kinetic energy becomes zero, and from where it starts retracting its original path. Right? Okay. Definition. The distance of closest approach is the minimum distance of the stationary nucleus with a positively charged particle making head-on collision from a point where its kinetic energy becomes zero. Suppose a positively charged particle A of charge Q1 is equal to ZE approaches from, what is Z? What is Z? Atomic number. Correct. Atomic number. तो कितना उसका चार्ज होगा, जितना एटॉमिक नंबर है मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके. यस रिया शर्मा, करेक्ट. Q equals to ZE approaches from infinity towards a stationary nucleus of charge Z2E. Okay, then suppose a positively charged particle A of charge Q1 equals to Z1E approaches from infinity towards a stationary nucleus of charge Z2E. डबल हो गया, आई थिंक बार बार ही लिख दिया उसने उधर, बट कोई बात नहीं. तो Z1 ये क्या है, ये Z1 ये वाला आ रहा है, Z2E है इसके पास, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे इसके पास जितनी एनर्जी थी वो एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना. लेकिन तुम्हारे स्कूल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ाया नहीं है, फिर ये फॉर्मूला कैसे आएगा तुमको?
ये लास्ट चैप्टर होता है वैसे 12th में, आखिरी चैप्टर सबसे अनदेखा चैप्टर होता है, मेजर चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और वो। तो तुम लोग को फिर फॉर्मूला पता है दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है? नहीं सर। गाइस, पीपल, डू यू नो अगर यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा? 1/4πε0, ऐसा कुछ सुना है? यार नहीं पता, फिर कैसे पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर? ओके, लिखा होगा यार तुम्हारे नोट्स में भी, बिना बिना ये फॉर्मूला लिखा है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। और जब तक फोर्स नहीं पता होगा तब तक तुमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता होगा। तो यहाँ पे जितनी इसकी एनर्जी है दैट शुड गेट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी है बाय। अच्छा रुको, यू रिमेम्बर ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, वहां से मैं पढ़ा सकता हूँ तुमको, ठीक है? ग्रेविटेशन में सेम सेम चीज ही हो रही है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो क्या हो गया आर्यन, को दिखा रहे हो क्या? अच्छा नहीं, ओके। ग्रेविटेशन टाइप में कर भी रहा सेम था। चीज हो रही थी, दो के मास मास के कारण फोर्स था, है ना? यहाँ पे दो के चार्ज के कारण फोर्स है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर होता है, ठीक है? यहाँ पे देखता हूँ अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा। नहीं है, क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है ना, तो इसने अज्यूम कर लिया कि तुम्हें फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पे आ गया। यस करेक्ट, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर्यन, आर्यन आर नहीं है, आर स्क्वायर है। जयवीर इज राइटिंग, क्योंकि उसके स्कूल में पढ़ाया आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, किंशु इज सेइंग Q1 Q2 अपॉन आर समथिंग समथिंग। अच्छा लिखाया है, समझाया नहीं। सिद्धार्थ इज सेइंग ओके बट आई एम क्लूलेस। ओके, वेयर k इक्वल्स टू 1/4πε0, राइट? ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना चाहिए हमको। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, अगर दोनों का है Q1 Q2, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उसको और ज्यादा पढ़ेंगे। तो क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स होता है, फोर्स क्या हो रहा है अभी? Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा ये, ठीक है? तो Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, कोई आइडिया? एनी आइडिया हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी? अब ये तुम बना सकते हो, मतलब अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन सकता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला पता है तुमको, ठीक है? 1/4πε0 को ही मारो गोली, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? के कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, सिर्फ आर चेंज हो रहा है ना? और तुमको एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होता है? एफ ds। तो अगर ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू ds करोगे तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बताओ? के Q1 Q2 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर टू द पावर -2 हो जाएगा, आर टू द पावर -2 इंटू डी आर, और उसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा देखो? थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ मैं तुमको, है ना, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए क्या हो रहा है इधर। ये होती है फिजिक्स अच्छी वाली, इसको ये करना चाहिए ना। करेक्ट जयवीर, सही बोला तुमने। तो फोर्स पता है हमको, और एफ डी एस इज दी एनर्जी। तो थोड़ा सा बस सेंस बता दो मेरे को, थोड़ा सा ही, एकदम डीप में बताएंगे। के Q1 Q2 आर टू दी पावर -2 डॉट डी आर को इंटीग्रेट कर दो 0 टू आर, तो कितना क्या आ रहा है देखो? बताओ पीपल, अभी तक सिर्फ जयवीर ने दिया आंसर। आर्यन गोदवाल करेक्ट आंसर, गुड गुड आर्यन। चलो एवरीबॉडी बताओ फटाफट। हाँ, जयवीर थिंग्स लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, दैट्स व्हाई आई सेड ये तुम बता सकते हो, क्योंकि हमने इसको ग्रेविटेशन में किया था। सिमिलर फोर्स का सिमिलर फॉर्मूला है। उधर फोर्स का क्या फॉर्मूला था? जी एम, जी कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
यहाँ पे k इज कांस्टेंट, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही निकाला हमने, फोर्स डॉट dr, यहाँ पे भी फोर्स डॉट dr करके निकालो पोटेंशियल एनर्जी। कितना आ रहा है? आर्यन गोथवाल करेक्ट आंसर, जस्मीन कौर करेक्ट आंसर। ठीक है, और बाकी लोग भी बताओ फटाफट यार। और अगर इंटीग्रेट वगैरह करना नहीं आता तो मेरी 11th वाली क्लास में अटेंड करो, अभी कैलकुलस पढ़ाया था मैंने उधर। जिन्हें कोई डाउट है हाथ उठाया, टेल मी, कम इन। अभी आई थिंक मेरी वॉइस ही काम। That was old, sir. That was पहले अच्छा, का. that was old. Okay, all right, okay. Now I'm getting all charged up. Pun intended. रिया शर्मा करेक्ट आंसर। बाकी लोग बताओ ना यार जल्दी। फोर्स है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेट करो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr को, 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करो उसको। एक्चुअली 0 से r नहीं इंटीग्रेट करना तुम्हें, एक्चुअली इंटीग्रेट करना इंफिनिटी टू r, क्योंकि इंफिनिटी से आ रहा है r तक, है ना। तो r पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलो, जसलीन को और करेक्ट आंसर। चलो चलो एवरीबॉडी जल्दी। किस किस को नहीं समझ में आ रहा हाथ उठाओ, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। अगर समझ में आ रहा है तो देन आई विल वेट फॉर यू टू इंटीग्रेट। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? देखो फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो ये है एक चार्ज, ठीक है, ये दूसरा चार्ज, ठीक है। इंफिनिटी पे रहेगा तो इस पे फोर्स दोनों पे तो 0 लगेगा, क्योंकि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, r इज इंफिनिटी, तो 0 हो गया फोर्स। अब इसको 0 4 से लेके आ रहे हैं हम इधर, ठीक है। तो जैसे जैसे ला रहे हैं इस पे हमको वर्क करना पड़ रहा है, जो वर्क करेंगे वो इधर एनर्जी बन जाएगा बाद में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही। तो हमको कितना वर्क करना पड़ा इंफिनिटी से r तक लेके आने में। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर चार्ज, तो इंफिनिटी से r तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क हो गया f डॉट dr। तो कर लो इंफिनिटी टू r, इसको इंटीग्रेट कर दो। ऋत्विक राजेश रॉन्ग आंसर। तुम यार तुम अटेंड करो मेरा कैलकुलस का सेशन। r टू द पावर -2 डॉट dr को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। करो, आई एम वेटिंग पीपल। अमला पाठक, अनन्या, जिनेन, किंशुक, सिद्धार्थ, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। बाकियों ने दे दिया आंसर। आर्यन इज आस्किंग टिल वेयर हैव यू रीच्ड इन कैलकुलस। वही डिफरेंशिएशन जो लास्ट मैंने तुम लोग को पढ़ाया था वहीं तक, उसके आगे मैंने क्लास नहीं ली अभी। ऋत्विक राजेश करेक्ट आंसर, गुड गुड। तो अभी आया तुम्हारा इंटीग्रेट करने के बाद -k q1 q2 अपॉन r आया ना, उसको लिमिट डाल दो उसका इंफिनिटी से लेके r तक, है ना। तो एनीवे बेसिकली हो जाएगा कि किसी भी r डिस्टेंस पे रखा हुआ है अगर दो q1 q2, तो उनके उनमें पोटेंशियल एनर्जी होगा k q1 q2 अपॉन r, ठीक है, ये उनका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है इधर, और उसके बाद यहाँ पे आके 0 हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब सब कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बस यही टोटल एनर्जी ऑफ ए, टोटल एनर्जी ऑफ बी, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, है ना। तो ये पता होना जरूरी है। तो इसके पास अगर ई एनर्जी से वो आ रहा था, तो ये देखो ये फॉर्मूला लगाया हमने, है ना, k q1 q2 अपॉन r। तो ये फॉर्मूला तुमने अभी डिराइव किया, थोड़ी तो फिजिक्स की कम से कम अभी। तो अब बस हो गया, E इक्वल टू k z1e z2e अपॉन r इन जूल्स, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। मिनिमम रेडियस इतना ही लेगा ना वो, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी से वो आ रहा था, तो यहाँ तब तक आएगा जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो जाती। और जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह बन जाएगा उसका, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट्स हाउ यू विल फिगर आउट आर नॉट का फॉर्मूला। E इज इक्वल टू, और ये आर नॉट इज इक्वल टू k z1e इंटू z2e अपॉन e, ठीक है, मीटर। ओके, चलो बनाओ, ये बनाओगे, बनाओ इसको, ये वाला क्वेश्चन करो। चलो गाइस, एग्जांपल 15 करो।
Okay, Aryan, we'll take your question after some time. सिद्धार्थ पंडित, करेक्ट आंसर. ओके, मतलब ये पुराना वाला आंसर था सिद्धार्थ का. ये वाला आंसर करो अभी. चलो एग्जाम्पल 15 करो. टेन MeV इज 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, किलो, फिर वो के टर्म्स में भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्यन इज आस्किंग व्हाट इज Z2 इन दिस. वही तो निकालना है, ये सब तो देखना है तुमको. देखो अल्फा पार्टिकल का Z कितना है, अल्फा पार्टिकल का Q कितना है, हमने किया था अभी, तुमसे ही पूछा था इनफैक्ट मैंने. ऋत्विक इज आस्किंग सर इज इट दिस. यार वो तो मुझे पता नहीं, हो तो आई हैव टू कैलकुलेट एंड सी. वो नीचे देखेंगे ना जब आंसर है, देखेंगे तो. कम ऑन एवरीवन, किस किस को समझ में नहीं आ रहा है हाथ उठाओ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ. किस किस को नहीं आ रहा हाथ उठाओ. ओके जीनेन, हु एल्स. ओके जीनेन, कम ऑन वॉइस. Yes, sir. हाय. ओके देखो, तो सिचुएशन ये है कि ये एक पार्टिकल है जो आ रहा है इसकी तरफ, और ये दूसरा पार्टिकल है ना. तो क्या बोला इसने कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, और यहाँ पे जिसको हिट करने वाला है उसका क्या है, टुवर्ड द स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50 है ना. तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 50 है तो उसमें कितना कितना चार्ज होगा. The charge. 1 second, sir. अगर इसका एटॉमिक Atomic नंबर number. 50 है तो उसके अंदर हाँ. प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. नहीं भाई, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. Okay, हाँ, correct. So 50 proton charge. Positive charge is 50 proton. यस, अंदर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज नहीं है. ठीक है, तो अगर हमको इसका सिर्फ चार्ज देखना हो तो इसमें होगा 50 E का पॉजिटिव चार्ज. तो E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है तो उतना एक प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ है ना, कूलम्स. तो E लिख देंगे उसको. तो यहाँ पे हो गया 50 E का चार्ज पॉजिटिव. अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है. Alpha particle is 2, right?
वेरी गुड, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है ना, तो उसके ऊपर 2e का चार्ज है, तो Q1 का वैल्यू आ गया, Q2 का वैल्यू आ गया, ये 2e हो गया, ये हो गया 50e, है ना। हाँ, okay, and अब ये then I can इसके पास कितनी एनर्जी थी आते हुए, कितनी एनर्जी थी इसके पास, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, और जब सबसे पास आ जाएगा तो उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। पोटेंशियल एनर्जी yes कितनी sir. होगी, सेम जितनी काइनेटिक थी पहले, 10 है to ना, the 6, 10, yeah, करेक्ट, ठीक है, okay sir. 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R0। बस ये करना हमको, है ना, Understood, understood. Okay sir, ठीक thank है। you. जैसे K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, तो वहां से भी ले सकते हो। चलो मेरे को पूरा करके बताओ, K की वैल्यू बता दिया मैंने तुमको, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, बताओ। गलत है ऋत्विक। हाँ, you forgot to account for E, right? रिया शर्मा करेक्ट आंसर। एंगस्ट्रॉम में दो मेरे को, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि ये जब भी हम न्यूक्लियस इन सब के बारे में बात करें ना, हम नॉर्मली एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे। एंगस्ट्रॉम में आंसर दो, कितना एंगस्ट्रॉम होगा उसका R0। वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10⁹ अनन्या। So 1/4πε0 सिद्धार्थ, 1/4πε0 is equals to 9 into 10⁹। चलो जयवीर, वेटिंग फॉर यू, आंसर दो भाई फटाफट। Jineen Setpal, correct answer. Give me in terms of angstrom. Amla, haven't got any answer from you. Where are you? Amla, if you can hear me, raise your hand. Okay. Are you on? I'm going to unmute you. Can you talk? Hi. Hi. Are you able to get it? Are you able to get what I'm telling? Yeah, 1 second. सब कुछ आया समझ में? हाँ, फिर से समझाऊं? नहीं, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करो फिर बताओ मेरे को। ओके। सिद्धार्थ गलत हो गया, मतलब सही है, ऑलमोस्ट सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ 10 वेन का तुम्हारा गलती है, देखो चेक करो। आर्यन गोतवाल रॉन्ग आंसर। Jineen Setpal, correct answer. Let me see. हाँ, Jineen Setpal, correct answer. अनन्या सुकांत रॉन्ग आंसर। 14.4 मीटर, इतना दूर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा 14 मीटर पहले। 14 मीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया ना, ऐसे थोड़ी। रिया शर्मा करेक्ट आंसर, गुड। और लोग बताओ फटाफट, दिखाऊं आंसर, दिखाऊं?
चलो नाउ आई एम शोइंग यू द आंसर। ठीक है, देखो ये अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये देखो कैसा होएगा, ये वाला एक आ रहा है ऐसे, कितने एनर्जी के साथ आ रहा है, 10 मेगा, तो 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है, तो टोटल एनर्जी उसके पास है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एकदम पास पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। वेलोसिटी जीरो होगी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चली गई, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आर नॉट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वहां पे होगा के Q1 Q2 अपन आर। के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1, तो इसमें Q1 कितना है इसके पास, ZE है ना, ये अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का Z2 हो गया, तो ये हो गया 2E, और यहाँ पे कितना होएगा 50, तो 50 प्रोटॉन है उसके अंदर, तो 50E हो गया, तो 2E इंटू 50E अपॉन अपॉन आर नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा हमने है ना, डैम, ओ ओ ओ क्या हो रहा है, सेकेंड, So R naught will be 50E into 2E upon 10 to the power 6 whole into K, right? दिखाता हूँ एक मिनट, ये दिस इज नॉट रिएक्टिंग प्रॉपर्ली, मैं बहुत ऊपर नीचे जोर जोर चला गया हूँ, जैसे कि ना, ओहो सो स्लो। ये तो पहले एनर्जी थी 10 टू दी पावर 10 इंटू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, सो 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, EV यहाँ पे हो गया ये 9 टू 10 पावर 9 इंटू 2E इंटू 50E अपॉन आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो विल कम आउट टू बी ये। So why did we take 10 into 10 to the power 6 E? E नहीं है वो, EV है ना? हम्म, So it EV। should only be 10 to the power 6 electron volt because 1 mega electron volt is 10 to the power 6. तो हमारे पास 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। Okay, got it. ओके, गॉट इट पीपल। आगे बढ़े, कूल। ठीक है, आ गया सबको, अनन्या इज आल्सो सेइंग उसको भी आ गया, अमला आ गया तुमको, ये देख लो, अगर कुछ नहीं आया हो तो बता दो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, डू इट। A beam of alpha particles of velocity blah is scattered by a gold Z equals to 79. ठीक है, foil. Find out the distance of closest approach of the alpha particle to the gold nucleus. The value of charge to mass for alpha particle is 4.8 into 10 to the power 7. Okay, coulomb per kg. ठीक है, बनाओ, ट्राई करो।
जिनेन सेतपाल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ऋत्विक इज आस्किंग सर व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा। मास की जरूरत नहीं है, वो दिया है ना इसने, चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है, तो तुम उसको कैलकुलेट करोगे तो एक रेशियो आ जाएगा अपने आप, उसकी जगह पे तुम लिख देना इसको, मास की जरूरत नहीं हमको। जिनेन सेतपाल इज करेक्ट। आर्यन इज द काइनेटिक एनर्जी कमिंग आउट टू बी ब्ला ब्ला। अब यार वो तो मेरे को नहीं पता ना, मैंने नहीं सॉल्व किया। आई कैन ओनली टेल यू हाउ टू सॉल्व, वो तो आप नीचे जाएंगे तो पता चलेगा। करके देखो, काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी है तुमको डायरेक्टली, क्योंकि काइनेटिक तुम क्या लिखोगे, इतनी वेलोसिटी सारी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी है v, तो हो जाएगा हाफ इंटू एम अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और इसमें चार्ज कितना है, वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास, चार्ज कितना उसके ऊपर 2e, तो 2e अपॉन एम अल्फा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, 2e अपॉन एम अल्फा की वैल्यू दी हुई है। सिद्धार्थ पंडित करेक्ट आंसर, मतलब फिर तुम्हारा 10 टू दी पावर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बाकी करेक्ट है। Actually, let me also calculate. 14. बताओ। रिया शर्मा करेक्ट आंसर, नहीं रिया शर्मा रॉन्ग आंसर। रिया शर्मा 10 टू दी पावर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। सिद्धार्थ पंडित 10 टू पावर 4 नहीं होगा, 10 टू पावर -4 होगा वो, ठीक है। आर्यन गोतवाल करेक्ट आंसर। अनन्या करेक्ट आंसर। हाँ सिद्धार्थ करेक्ट आंसर। आर्यन करेक्ट आंसर। गुड गुड, बन गया सबसे, आ रहा है इसका मतलब तुम लोग को समझ में, ठीक है। ये देखो कैसे करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी इक्वल टू के इनटू 2e is for the alpha particle and ze is for this gold, तो ये 79 ही हो जाएगा ना अपॉन आर नॉट, ठीक है। तो आर नॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के 2k और एम अल्फा नीचे हो जाएगा। तो अब इसमें चार्ज टू मास रेशियो है, इसका मतलब चार्ज कितना है अल्फा पे, 2e अपॉन एम अल्फा, तो 2e अपॉन एम अल्फा इज इक्वल टू 4.8 दिया हुआ, तो 2e अपॉन एम अल्फा कर दो ये इंटू 79e अपॉन बी अल्फा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था बस, थोड़ा सा ही। तो यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, ठीक है।
ये टाइपो मिस्टेक है, ठीक है। ये 9 × 10⁹ है ये, हाँ 9 × 10⁹ है। इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 2.5 × 10⁻14। तो काफी लोगों ने दिया था आंसर, वेरी गुड। आई एम स्टिल नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, वो नहीं आ रहा है। अरे वो किधर है यार, आर्या भवलकर किधर है? ऐसे क्लास छोड़ेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा उसको आगे। अच्छी बात ये है कि रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट सवाल करें। अभी आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? अगर समझ में आ रहा है तो हाथ उठाओ। ऋत्विक, राजेश और किंगशु दो लोगों ने हाथ नहीं उठाया, बाकी सबने हाथ उठाया। उठाओ उठाओ उठाओ, किंगशु एंड ऋत्विक, राजेश। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल ये लो। A proton moves with a speed of blah, directing towards a free proton originally at rest. Find the distance of closest approach for the two protons. Wow, this is going to be a tough question. करो, इसके लिए तुमको मैकेनिक्स करना पड़ेगा वापस, ग्रेविटेशन जैसा सवाल है। थोड़ा दिमाग लगाओ, मजा आएगा। तो ये सिचुएशन कैसी होगी कि ये दो प्रोटॉन्स हैं, देखो ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन आ रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है। कितना स्पीड बोला उसका? 7.45 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे आया, ठीक है प्रोटॉन। ये दूसरा प्रोटॉन वहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ऐसे पास आएगा तो थोड़ी देर के बाद ये भी मूव करना शुरू करेगा, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये भी मूव कर रहा है, ये वाला प्रोटॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ये वाला भी मूव कर रहा है, ठीक है। बट डिस्टेंस जो है उनके बीच का वो पोटेंशियल एनर्जी देगा, और मोमेंटम तुम कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा इस केस में, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। कैसे निकालोगे बताओ? चलो Javier is asking half mv square equals to ke square by r. नहीं, हाफ mv square is equal to ke square by r नहीं है, क्योंकि उस फाइनल पोजीशन ऐसा कोई नहीं होगा कि दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ऐसा होएगा कि जब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तभी आर नॉट सबसे कम रहेगा, क्योंकि थोड़ी टाइम के बाद जिसकी वेलोसिटी हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। सो फाइनल v1 और v2 दोनों की सेम रहेगी। हालांकि इसको डिफरेंशिएशन सबको निकालना चाहिए, तो इसमें दो चीजें करोगी तुम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
क्या आया? Gene is saying I'm not getting this one. I knew how to solve it, but I didn't consider the stationary proton moving. हाँ, okay. Sir, can you use the calc? हाँ, use कर लो यार, कैल्सी यूज करो अभी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो. ओके, क्या आंसर आया? नहीं जयवीर, गलत है. चलो ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ उसका सोल्यूशन, ठीक है, देख लो, या हिंट देता हूँ, ठीक है. देखो, प्रोटॉन है, ये फ्री प्रोटॉन है, ठीक है. प्रोटॉन Sir, ऐसे आ रहा था, कितनी, हाँ बोलो. sir, I think I got the answer. कितना? Uh, um, 10 raised to 12 minus 12 minus 12 meter. 10 रेज टू -12? नहीं, थोड़ा सा फिर 10 ऊपर का कुछ मिस्टेक किया. ये देखो, सो ये इतनी स्पीड से आ रहा है प्रोटॉन ऐसे, ठीक है. यहाँ पे ये 0 है, ठीक है. तो फिर क्या होगा, इसके इसके आने के कारण ये वाला प्रोटॉन भी मूव करना शुरू करेगा, है ना. तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, ठीक है. तो जब आफ्टर सम टाइम बोथ ऑफ देम विल मूव एट सेम वेलोसिटी, v1 एंड v2 विल बी सेम, दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है. तभी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा. हालांकि इसको हम डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते थे, लेकिन अभी के लिए इतना ही ले लेते हैं, ठीक है. तो कैसे करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर जो पहले का वेलोसिटी था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दूसरे की वेलोसिटी 0 थी, इज इक्वल टू, अब दोनों के बीच में क्या आ गया, अब दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ गया, विच इज के 1e इंटू 1e अपॉन आर नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. ओके. तो बाय कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है, वो तो हो गया. ठीक है. तो या हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हाँ ये पता चल जाएगा तुमको, mv था पहले मोमेंटम और बाद में mv1 है, तो इसका मतलब v1 जो है दैट इज v/2, ठीक है. तो यहाँ से वो पता चल गया, v1 की वैल्यू पता चल गई. ओके. तो यहाँ पे तुमने डाला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के ई इंटू अपॉन आर नॉट प्लस एम वी स्क्वायर, एम वी क्या, एम वी बाई टू स्क्वायर. हाँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर था ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वेयर एज एम वी टू स्क्वायर विच इज v/2, ठीक है. तो यहाँ पे सब डालोगे तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 1 इंटू 10⁻12 मीटर. So correct ना? तुमने 10 इंटू 10⁻12 बोला ना. Sir, I just said 10 to the power minus 12. I did not say 10 into 10 to the power minus 12. ओह ओके, देन करेक्ट है फिर, ठीक है, गुड. अच्छा, रिया शर्मा is also saying that only 10 to the minus 12. Okay, okay. I was seeing it as 10 into 10 to the minus 12. Okay, right? Yeah, good. ठीक है, सही है यार तुम दोनों का फिर, गुड. ठीक है, आ गया समझ में? गॉट इट गाइस? किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा दो. किसी को डाउट नहीं है?
ठीक है, तो मैं सवाल भेजूंगा आज करने के लिए, आज एक एक्सरसाइज भेजूंगा मैं इसके बेसिस पे, वो तुम कर लेना और इससे आई थिंक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज की क्लास इसी के साथ खत्म होती है। अगली क्लास आई सी, अब तो तुम्हारे नोट्स हैं मेरे पास जो स्कूल में तुम्हारे पढ़ाए हुए हैं, सो देन नेक्स्ट क्लास में आई थिंक वी शुड फिनिश दिस। ठीक है, ऑल राइट, ओके, चलो गाइस, बाय बाय बाय।